Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today again we will continue the lesson The Homecoming, its ninth part. Now in the ninth part we are going to study how Fatik felt in his uncle's house, how lonely he used to feel, and remember all those things present in his hometown where he used to live very happily. One day he summoned up all his courage and asked his uncle, "Uncle, when can I go home?" His uncle answered, "Wait till the holidays come." But the holidays would not come till November, and there was a long time still to wait. One day Fatik lost his lesson book. Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. Now it was impossible. Day after day, the teacher would cane him unmercifully. His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. They began to jeer and insult him more than the other boys. He went to his aunt at last and told her that he had lost his book. एक दिन उसने अपना सारा साहस जुटाया और मामा से पूछा, "मामा, मैं घर कब जा सकता हूँ?" उसके मामा ने उत्तर दिया, "जब तक छुट्टी आए तब तक प्रतीक्षा करो, लेकिन छुट्टियाँ तो नवंबर तक नहीं आएंगी और अभी तो प्रतीक्षा करने के लिए बहुत लंबा समय पड़ा हुआ था।" एक दिन फाटिक की अपनी पाठ्य पुस्तक खो गई। पुस्तक की सहायता से भी उसे अपने पाठ को तैयार करना वास्तविक रूप से बड़ा कठिन लगता था। अब तो असंभव हो गया था। दिन प्रतिदिन अध्यापक उसे डंडे से बेरहमी से पीटा करता था। उसकी दशा इतनी दीनहीन अवस्था में दयनीय हो गई थी कि उसके अपने ममेरे भाई भी उसे अपना कहने में शर्माते थे। अंत में वह अपनी मामी के पास गया और उससे कहा कि उसकी किताब खो गई है। His aunt pursed his lips. His aunt pursed his lips in contempt and said, "You great clumsy country lout, how can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month?" That night, on his way back from school, Fatik had a bad headache with a fit of shivering. He felt he was going to have an attack of malarial fever. His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. The next morning, Fatik was nowhere to be seen. All searches in the neighborhood proved futile. The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. At last, Bishambar asked help from the police. उसकी मामी ने घृणापूर्वक अपने होठों को दबाया और बोली, "तू बहुत ही फूहड़, देहाती, उजड्ड लड़का है। अपने पूरे परिवार को साथ लिए हुए महीने में 5-5 बार नई किताबें खरीदने के लिए कहाँ से मैं पैसे का इंतज़ाम करके तुझे दूँ?" उस रात को स्कूल से वापस घर की ओर आते हुए रास्ते में फटिक को बड़े ज़ोर का सिर दर्द हुआ और साथ में कपकपाहट का दौरा पड़ गया।
उसे ऐसा लगा कि उस पर मलेरिया बुखार का हमला होने जा रहा है। उसको एक बड़ा डर यह सता रहा था कि इस प्रकार से वह अपनी मामी को कष्ट पहुंचाने वाला प्राणी बन जाएगा। अगली सुबह फटेक कहीं भी नहीं दिखाई दिया। आस पड़ोस में की गई उसकी खोजबीन व्यर्थ सिद्ध हुई। पूरी रात भर जोरों की बरसात गिरती रही और जो लोग उस लड़के की तलाश में गए हुए थे वे अपने त्वचा तक पूरे भीग गए। अंत में बिशंबर ने पुलिस से सहायता मांगी। At the end of the day, a police van stopped at the door before the house. It was still raining and the streets were all flooded. Two constables brought out Fatek in their arms and placed him before Bishambar. He was wet through from head to foot, muddy all over. His face and eyes flushed red with fever and his limbs all trembling. Bishambar carried him in his arms and took him into the inner apartments. When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us. Hadn't you better send him home?" Fatik heard her words and sobbed out loud, "Uncle, I was just going home, but they dragged me back again." दिन के समाप्त होने पर एक पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। अभी भी बरसात हो रही थी और सड़कें पूरे तरीके से पानी से भरी हुई थीं। दो सिपाही अपने हाथों में फटिक को बाहर लाए और उसे बिशंबर के सामने रख दिया। वह सिर से पांव तक भीगा हुआ था, पूरा कीचड़ से सना हुआ था। उसका चेहरा और आँखें बुखार से लाल हो रही थीं और उसके सभी अंग काँप रहे थे। बिशंबर ने उसे अपने हाथों में ले लिया और उसे भीतर के कक्षों में ले गया। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वह बोली, "इस लड़के ने हमें कितनी तकलीफ़ दे रखी है। अच्छा हो कि तुम इसे घर भेज दो।" फटिक ने उसके इन शब्दों को सुना और ज़ोर से सिसकते हुए बोला, "मामा, मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन ये लोग मुझे फिर यहाँ खींच लाए।" तो बच्चों देखिए, जब फटिक को उसके मामा के घर मामी से और उसके बच्चों से प्रेम नहीं मिल रहा था, उसको तिरस्कार मिल रहा था, ऐसी परिस्थिति में उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था, न पढ़ाई में लगता था और अब वो इतना निराश हो गया वहाँ के माहौल से कि वो केवल अपने घर जाने की सोचने लगा। तो एक दिन बहुत हिम्मत जुटा करके उसने अपने मामा से पूछा कि मामा, हम घर कब जा सकते हैं? तो उसके मामा ने कहा कि नवंबर में जब छुट्टियां होंगी तब तुम्हें घर ले चलेंगे। लेकिन विशंबर इतना बुरी तरह दुखी हो चुका था कि वो नवंबर तक इंतज़ार नहीं कर सकता था। अगले दिन वो विद्यालय गया। विद्यालय से जब लौट रहा था तो पानी बहुत तेज़ बरस रहा था। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था और उसने अपने मन में सोचा कि यदि इस तरह से बुखार वाला शरीर लेकर के वो अपनी मामी के सामने जाएगा तो उसकी मामी और अधिक नाराज़ होंगी। इसलिए उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, मामा के घर ना जा कर के सीधा अपने घर के लिए ही निकल लेते हैं। और वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात हो गई, फटिक घर वापस नहीं आया।
तो उसके मामा को चिंता हुई। उसने आस पड़ोस में ढूंढना शुरू किया, लेकिन सब बेकार था। फटिक वहाँ कहीं नहीं मिला। फिर उसने पुलिस में कंप्लेंट लिखाया और पुलिस से मदद मांगी। लगभग काफ़ी रात को, देर रात, पुलिस की गाड़ी बिशंबर के घर के सामने आकर रुकी और 2 कांस्टेबल्स ने फटिक को उठा करके बिशंबर के सामने रख दिया, गाड़ी से उतार कर। बिशंबर ने जब उसका हाल देखा तो वो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि बच्चा बहुत बुरी तरह भीगा हुआ था, मिट्टी से सना हुआ था। उसकी आंखें बुखार से एकदम लाल थीं, शरीर कांप रहा था। उन्होंने उसे उठाया और अंदर के कमरे में ले गए। जब वो लेके जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनके तरफ देखते हुए कहा कि ये लड़का हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है, इसको घर क्यों नहीं भेज देते। और ये बात फटिक के कानों में पड़ जाती है। तो फटिक रोते हुए बोलता है कि मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन ये लोग मुझे वापस खींच कर ले आए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी अगले क्लास में लेकर के आएंगे। थैंक यू।